ناظرین، سیاسی لیڈرز کی مقبولیت کے حوالے سے مختلف سرویز آتے رہتے ہیں۔ یہ ایک نیا سروے ایک آیا ہے اور یہ سروے ہے ریپبلک پالیسی کا۔ انہوں نے سروے یہ کیا کہ لاہور کے اندر شہریوں سے پوچھا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مقبول سیاسی لیڈر کون ہے آپ کی نظر میں، تو شہریوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ جواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جو لاہور کے شہریوں سے سوالات کیے گئے، 56% لوگوں کے مطابق عمران خان ان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، 56%۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ نواز شریف صاحب ہیں اور حالت ان کی یہ ہے کہ وہ 17% پہ رہ گئے ہیں لاہور میں۔ پھر جو تحریک لبیک کے لیڈر ہیں سعد رضوی صاحب، وہ 4% پہ ہیں، تیسرے نمبر پہ ہیں۔ بلاول زرداری ایک بڑی جمہوری پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر، وہ 3% پہ ہیں۔ جماعت اسلامی 2% پہ ہے، باقی سیاسی جماعتیں 2% پہ ہیں، جبکہ 16% لوگ ایسے ہیں جو کسی بھی سیاستدان کو پسند نہیں کرتے۔ اب عمران خان 56% کے ساتھ سب سے آگے، یہی تو پرابلم ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی۔ عمران خان کی مقبولیت کا خوف انہیں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے بھی نہیں ہونے دیتا، اور جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے اندر شامل جماعتوں میں ایک پیار محبت اور رومانس چل رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ عوام میں عمران خان کی مقبولیت ہے۔ اگر عمران خان صاحب عوام میں مقبول نہ ہوتے تو شاید یہ اتنا لمبا نہ چلتے۔ اپنے سروائیول کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مدد کر رہی ہے روایتی سیاسی جماعتوں کی، اور روایتی سیاسی جماعتوں کی جو حکومت ہے وہ مدد کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو ایک دوسرے کے سہارے یہ سب بیچارے کھڑے ہیں۔ اور حقیقی خبر بھی یہی ہے کہ ایک آدمی جسے جیل میں رکھا گیا صرف اس لیے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا کلیش ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے یہ ہمارے مطابق چلے، اور وہ آدمی چاہتا ہے کہ نہیں، عوام کے مینڈیٹ کے مطابق ملک چلے گا۔ اب اس آدمی کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، وہ پاکستان کا سب سے مقبول آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی عوام نے اس کی جماعت کو جتوایا۔ تو بڑی مشکلوں سے انہوں نے ایک صوبے میں اپنی حکومت حاصل کر لیا، وہاں جو وزیر اعلیٰ ہے اسے ملنے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی جب تک کہ وہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ضد پکڑی ہوئی ہے، تم ہم سے آ کر ملو، ہمارے دروازے پر حاضری دو، پھر ہم تمہاری ملاقات کرواتے ہیں عمران خان سے۔ سہیل آفریدی کہتا ہے جی ایسے نہیں ہوگا، میں عمران خان صاحب سے ملوں گا، جس سے وہ مجھے کہیں گے اس سے مل لوں گا، کیونکہ مینڈیٹ ان کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ تو اور کسی چیز کی نہیں، سہیل آفریدی وفاداری کی قیمت ادا کر رہا ہے، اور خیبر پختونخوا کے جو ہمارے غیور پشتون ہیں انہوں نے ہمیشہ جو قیمت ادا کی ہے زیادہ تر وہ وفاداری کی ہی کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کی وفاداری کا ناجائز فائدہ ہمیشہ اٹھایا ہے۔ اب ان کے اسٹیٹمنٹ جو آج کے ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ اگر آپ ایک دن پہلے کا عمران خان صاحب کے ٹویٹ اٹھا کر دیکھیں اور آج کے سہیل آفریدی کے بیانات اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ معاملہ کتنا گرم ہو گیا، اور کم سے کم جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس اس معاملے کا کوئی حل بھی دکھائی نہیں دے رہا، سوائے اس کے کہ وہ ایک ضد ہے کہ جناب نہیں ملنے دینا تو نہیں ملنے دینا، اور نہیں ملیں گے تو یہ ایک ضد ہے، اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا، اس سے صرف آپ کے کپڑے اترتے جائیں گے اور ایک ایک کر کے آپ ننگے ہوتے جائیں گے۔ جب پالیسی عوام کے مفاد میں نہیں ہوگی، جس میں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، وہ نہ ہم نے پہلے قبول کی تھی نہ آج قبول کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ دیکھیں، میں ایک بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان ایک آخری چانس ہے اپنی عزت بچانے کا۔ پاکستانی قوم بہت آگے نکل گئی ہے۔ آج کچھ اور حقائق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بتائے، بہت ساری چیزیں میں جانتا ہوں، ایسی چیزیں جانتا ہوں آپریشن زدہ علاقوں کے بارے میں جو میں نے وہاں لوگوں سے سنی، اگر عوام کو بتائیں تو پاکستان میں آگ لگ جائے گی۔ تو بجائے کہ وہ چیزیں سامنے آئے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے مزید سبکی اور پریشانی کی اور نفرت کی ایک لہر جنم لے، بہتر یہ ہے کہ عمران خان جیسے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ وہ واحد اور آخری موقع ہے آپ کا جو آپ کو بیرکوں میں جانے میں آسانی پیدا کر سکتا ہے، آپ کو عزت کے ساتھ اپنی ڈومین میں واپس بھیج سکتا ہے، ورنہ اس کے بعد آپ جانا بھی چاہیں گے تو لوگ آپ کو جانے نہیں دیں گے، لوگ آپ کو چپک جائیں گے، کیونکہ عمران خان کے بعد صورتحال کچھ اور ہوگی۔ عمران خان آج بھی اتنی شدید تکلیف، بربریت، ظلم، فسطائیت، قتل و غارت گیری کے باوجود کہتا ہے ملک بھی میرا، فوج بھی میری۔ ہو سکتا ہے کل کوئی اور یہ بات نہ کرے، یا جو بھی کل کو یہ بات کرے عوام اس کی بات ہی نہ سنے، تو پاکستان کی فوج کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ فوجی قیادت کو میں یہ کہہ رہا ہوں، فوج تو بیچاری، وہ تو ہمارے اپنے بہت سارے جاننے والے دوست ہیں، باپ سارے فوج کے اندر، بے شمار رشتہ دار ہیں دوستوں کے، وہ سارے فوج کے اندر، وہ خود بھی بیچارے تنگ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ یار کس چکر میں ڈال دیا پکڑ کے ہمیں۔ ہر بندہ ہمیں پیار سے دیکھتا تھا، وہ اس طرح نہیں دیکھتا، انفارچونیٹ ہے۔ تو عمران خان یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے آخری موقع ہے کہ ان کو عزت کے ساتھ اس جنجال سے وہ نکال سکتا ہے۔ اس کے بعد لوگ کسی کی بات ہی نہیں سنیں گے، جو اس بارے میں بات کرے گا لوگوں سے گالیاں دیں گے، جیسے کہ ابھی بھی لوگوں کو گالیاں
लोगों की जबान की नोक के ऊपर गाली होती है। जो आदमी जरा सा प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश करता है दुर्गत बना देते हैं लोग। ये रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आपने अपने बड़े करीबी लोगों को कहा कि यार हमारी तारीफ करके देखो, लोगों ने बात नहीं सुनी उनकी। और जिन लोगों ने आपके खिलाफ 4 जुमले बोल दिए, लोगों ने उनको उठा के सर पे रख लिया। एमएल वली खान और फजलुर रहमान के जुमले वायरल हो जाते हैं जो वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं। तो इमरान खान इनके बाद आखिरी मौका है, बाकी मर्जी है इनकी। ये आईनी तरमीम पाकिस्तान और इंडिया की जंगी हिकमत अमली के बारे में नहीं है। ये टाउट और ये दानिशवर ये आपके साथ गलत बयानी करके आपको गलत चूरन चटवा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं हकीकत क्या है। इसका कोई ताल्लुक जंगी हिकमत अमली से नहीं है। ये जो आईनी तरमीम है ये सिर्फ और सिर्फ सिविलियन सुपरमेसी को खत्म करने की है बस। यानी जो इस वक्त आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं उनके इख्तियारात को बढ़ाने की तरमीम, उनकी ताकत को सिविलियन हुकूमत के मुकाबले में ज्यादा करने की तरमीम है, बस ये बात है। भाई इंडिया से लड़ने से किसी ने रोका आपको? जाके लड़े। वो आपके पानियों के ऊपर बंद बांध रहा है, अगर आप जाके वो बंद तोड़ना चाहे तो उसके लिए कौन सी आईनी तरमीम चाहिए? या इंडियन तैयारे जो आपने गिराए हैं, ट्रंप ने तो मजाक ही बना दिया है। वो पहले 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 हो गए। अभी उसने 8 तैयारे भी कह दिए ट्रंप ने। इतने तो हमने कभी नहीं कहे, उसने मजाक बनाया और लगता है वो दोबारा जंग करवा के रहेगा पाकिस्तान और इंडिया की। वो इंडिया की इतनी बेइज्जती कर रहा है आलमी सजा के ऊपर ट्रंप, उसने धो के रखा हुआ है इंडिया के साथ। उसने एक मुआहदा भी कर लिया, फिर भी उनकी टका के बेइज्जती कर रहा है। तो अब 8 तैयारे हो गए हैं। मुझे लगता है इस रफ्तार से अगर ट्रंप लगा रहा तो अपने इसी टर्म में ट्रंप इन तैयारों की तादाद जो है वो 80 के करीब ले जाएगा कि पाकिस्तान ने इंडिया के गिरा दिए थे। जिस तरह वो नीचे से ऊपर जा रहा है, 5, 6, 7, 8 ऐसे जा रहा है। तो रोजाना के हिसाब से इंडिया का तैयारा वो गिरा देता है। हर थोड़े दिन के बाद हर हफ्ते एक तैयारा और गिर जाता है इंडिया का। तो इंडिया को लगता है वो इंस्टिगेट कर रहा है, गुस्सा दिला रहा है कि लड़ो पाकिस्तान से दोबारा, ताकि डोनाल्ड ट्रंप मजीद रेलिवेंट हो जाएगा। लेट्स सी वहां क्या होता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि ये तरमीम कोई इंडिया से लड़ाई की नहीं है, तैयारे कैसे गिराने हैं, जंग कैसे करनी है, उसके बारे में नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल कैसे ज्यादा बढ़ाना है, ये उसके बारे में तरमीम है। ये पाकिस्तान के अंदर इंतजामी मामलात के ऊपर तरमीम है कि जो एक तवाजुन है वो खत्म कर दिया जाए और जो सिविलियन सुपरमेसी है वो खत्म हो जाए। मिलिट्री के बाद इख्तियारात जो है कम से कम आर्मी चीफ के पास वो सदर और वजीर आजम के लेवल के इख्तियारात आ जाए। सिक्योरिटी के हवाले से खास तौर पे जो एक मैंने आपको कल बताया भी था कि एक तजवीज ये भी है कि सारे के सारे जो वो हैं इदारे फोर्सेस के वो सारे इनके अंडर कर दिया जाए। शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए और गजा पीस बोर्ड का पाकिस्तान बाकायदा हिस्सा बन गया। इस तकरीब में शहबाज शरीफ साहब स्विट्जरलैंड गए। उनके साथ इस खुशी के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे और शहबाज शरीफ ने गालिबन आसिम मुनीर की तरफ इशारा भी किया, डोनाल्ड ट्रंप को बताया उन्होंने कि वो बैठे। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आसिम मुनीर ही थे जिस तरफ शहबाज शरीफ ने इशारा करके बताया डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इसके अलावा कोई और वजह हो नहीं सकती इशारा करने की। थोड़ी सी गप्पे शप्पे लगाई और उसके बाद ये दस्तखत किए। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े फखरिया अंदाज में वो दस्तखत जो उन्होंने किए वो ऐसे करके दुनिया को दिखाए भी कि देखें पाकिस्तान गजा पीस बोर्ड का हिस्सा बन गया। जो स्टेज था जहां पे ये दस्तखत हुए वहां पे कोई भी बड़ा आलमी रहनुमा मौजूद नहीं था डोनाल्ड ट्रंप के अलावा। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे थे और बाकी मुमालिक भी वहां पे थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पिछली लाइन में खड़े थे और देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को गुजरते हुए। इन्होंने तालियां भी बजाई, बड़ी खुशी का इजहार किया। देखिए अरब रहनुमा क्यों नहीं आए? मैंने वहां पे तुर्की के सदर को नहीं देखा, मैंने मोहम्मद बिन सलमान जो बहुत बड़े बड़े कदावर 2 बड़े रहनुमा है, मैंने दोनों को नहीं देखा। उसकी वजह क्या है? जो मुझे समझ आती है वो ये है कि अरब हुक्मरान ये जानते हैं कि जब तक फलस्तीन एक रियासत नहीं बन जाता मशरिक वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। देर पा अमन कायम होने के लिए फलस्तीन की एक रियासत बनानी पड़ेगी। और वो ये भी जानते हैं कि ये एक कोशिश की जा सकती है कि इसके जरिए से शायद अमन आ जाए, लेकिन इसका नतीजा शायद उन्हें लगता है कि वैसा नहीं निकले। अब दुनिया के साथ चलना तो है, उन्होंने इतनी गर्मजोशी नहीं दिखाई जितनी गर्मजोशी पाकिस्तान ने दिखाई है। वो ये जानते हैं कि अभी सफर बहुत लंबा है, मशरिक वस्ता में फलस्तीनी रियासत के कयाम के बगैर अमन मुमकिन नहीं है और फलस्तीनी रियासत बनानी पड़ेगी। लेकिन हमारे वाले जो हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे फील्ड मार्शल हो, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आप तस्वीर देखें, वीडियोस देखें, बहुत खुश नजर आ रहे थे इस मौके पर। तो इस खुशी की वजह यह है कि शायद इनका जो टारगेट है वो फलस्तीनी रियासत का कयाम नहीं है। इनका टारगेट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी हासिल हो जाए और वो इसी को अपने लिए एक फाइनल गोल समझते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। नादरीन, इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और वो इमरान खान साहब के गले की हड्डी बन गया।
तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की मुश्किलात कम नहीं हुई। इमरान खान साहब जेल में पड़े हैं और उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वर और सहाफी, वो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ पैगाम पहुंचाते हैं पाकिस्तानी कौम को कि इमरान खान किसी मुकदमे में जेल में बंद नहीं है। वो मुकदमा कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान को, साबिक वजीर आजम को जेल में डाला जाए। वजह सिर्फ इतनी है कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हुई, आलमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। तो पाकिस्तानियों को ना किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए। खुले दिल से आप इस हकीकत को तस्लीम करें और खुले दिल से आप इस बात को माने कि पाकिस्तान ने अमली तौर पे ऐलान तो नहीं किया लेकिन इसराइल को तस्लीम कर लिया। आप खुले दिल से इस बात को मान लें। पाकिस्तानियों को यह बात मान लेनी चाहिए, अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तान ने सिर्फ अनाउंस नहीं किया, इसराइल के साथ हमने एक वर्किंग रिलेशनशिप का आगाज कर लिया है। एक वर्किंग रिलेशनशिप इसराइल के साथ हमने डेवलप कर लिया है, एक ऐसे बोर्ड के अंदर जिसमें गजा के हवाले से फैसले किए जाएंगे। क्या फैसले किए जाएंगे ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हक अदा कर दिया दोस्ती। देखिए, अगर इसराइल की दोस्ती का हक आज तक किसी भी अमेरिकी सदर ने अदा किया तो डोनाल्ड ट्रंप से बढ़ के किसी ने नहीं किया। नेतन्याहू ने आज से 1-1.5 माह पहले एक जुमला कहा था। नेतन्याहू ने कहा था कि व्हाइट हाउस में इसराइल को आज तक कभी ऐसा दोस्त मैसर नहीं आया जैसा डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को सच साबित किया। और इस दोस्त ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के तमाम मुखालिफिन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जमा कर दिया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस काम से इमरान खान साहब ने इनकार किया था वो काम शहबाज शरीफ साहब ने खासी खुशी के साथ कर दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कोई भी मशहूर आलमी रहनुमा यहां पे मौजूद नहीं था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबको बुलाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी कि मगरबी ममालिक भी आए, यूरोप के रहनुमा भी आए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी तमाम ममालिक के रहनुमा यहाँ पे आने चाहिए। बरतानिया को यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, भारत को यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। मैंने भारतीय वजीर आजम या भारतीय वजीर खारजा भी नहीं देखा इस स्टेज के ऊपर। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भी दावत दी थी। इसराइल के भारत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने इन्हें भी वहां पे नहीं देखा। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है वहां पे। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ मगरिब खड़ा क्यों नहीं हुआ? अगर किसी को अभी भी ये गलत फहमी है कि वो शायद फलस्तीनियों की वजह से खड़े नहीं हुए या ये गजा पीस बोर्ड उन्हें लगा कि ये ज्यादती हो रही है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये गलत फहमी भी अपनी दूर करें। उनका मामला ग्रीनलैंड वाला है, उनके मामला डोनाल्ड ट्रंप के साथ दूसरे चल रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि गुलामी नहीं हम आपकी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने ये पैगाम दिया कि हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं एक इत्तेहादी के तौर पे। वहां पे ये सोच पैदा